Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, in the previous lecture we have solved first 6 numericals from 12.1 to 12.6, and now in this lecture we have to solve next 6 numericals from 12.7 to 12.12. So the statement of 12.7th numerical is this, that Nabila uses a concave mirror when applying makeup. The mirror has a radius of curvature of 38.0 centimeter. You can also say that 38 centimeter. What we have to find out, what is the focal length of the mirror, and at point B, at second point we have to find out Nabila is located 50 centimeter from the mirror. Where will her image appear? यानी image distance जो है वो आपने find out करना है. और जो थर्ड नंबर पे है, will the image be upright or inverted? क्या ये सीधा होगा या inverted होगा, ये हमने find out करना है. बेटा मैं फिर बता दूं आपको कि आपने स्टेटमेंट को गौर से फोकस करना है और उसको देख के आपने अच्छे तरीके से डाटा बनाना है. डाटा सही बना होगा तो फिर हम फॉर्मूला सही अप्लाई करेंगे, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करके हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. Now the given data for this numerical is radius of curvature r is equals to 38 centimeter and focal length we have to determine. Students, we know very well that focal length is equals to radius divided by 2. So f is equals to r by 2, that is equals to 38 centimeter over 2, and the value of focal length is 19 centimeter. Now point B which we have to find out, that is we have to determine image distance q. So we know very well that P is equals to 50 centimeter which is given to us, and Q we have to determine. So we will apply the mirror formula, 1 over F is equals to 1 over P plus 1 over Q. We will modify this formula as 1 over Q is equals to 1 over F minus 1 over P. In previous lecture I have told you the way of modification of this formula. So 1 by Q is equals to 1 by 19, यानी फोकल लेंथ कितनी आई थी 19 सेंटीमीटर. तो इंस्टेड ऑफ F we will put its value 19 centimeter minus we will put the value of P in 1 over P, 1 over 50 centimeter. In next step we will take the LCM of 19 centimeter and 50 centimeter, which will be 950 centimeter. So what will be the shape of the equation in the next step? 1 by Q is equals to 50 minus 19 over 950 सेंटीमीटर. ये आपको पता है, मैंने पीछे बताया था कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो फिर हम डिनोमिनेटर के साथ एक फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर के साथ एलसीएम को डिवाइड करते हैं. तो जब 19 के साथ हमने 950 को डिवाइड किया तो जो वैल्यू हमारे पास आई 50, उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया हमारे पास. ठीक है, फिर माइनस दूसरी साइड पे 19 है, इसका मतलब है 950 को जब हमने 50 के साथ डिवाइड किया, याद रखना बेटा 950 सेंटीमीटर विल बी डिवाइडेड विद 50 सेंटीमीटर. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा बाकी हमारे पास क्या 50 के साथ जब हम 950 को डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा. 19 को फिर हम न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 19 1 ज़ा 19. तो इक्वेशन की जो शेप होगी वो होगी 1 over Q इज इक्वल 50 माइनस 19 over 950 सेंटीमीटर. Now in next step we will cross multiply the values, like 1 over Q is equals to 31 over 950, यानी 50 में से जब हम 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 31 आएगा. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q विल बी मल्टीप्लाई विद 31 एंड 950 विल बी मल्टीप्लाई विद 1. ये बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट है जो आपको बिल्कुल छोटी क्लासेस से आपको आते हैं. ठीक है, तो अब Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो 31 जो है वो डिवाइड हो जाए, उससे हम डिवाइड कर देंगे जाके 950 को. सो Q विल बी इक्वल्स टू 950 सेंटीमीटर ओवर 31. सो Q की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 30.64 सेंटीमीटर. सो जो ऑप्शन थी उसकी जो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमने फाइंड आउट करनी थी कि वो उसका इमेज अपराइट होगा या इन्वर्टेड, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इन्वर्टेड. ठीक है, तो दिस वॉज द न्यूमेरिकल 12.7 एंड इट्स सोल्यूशन. Okay students, now we have to see numerical number 12.8, and the statement of this numerical is this: an object 4 cm high is placed at a distance of 12 cm from a convex lens of focal length 8 cm. Calculate the position and size of the image, also state the nature of the image. Students, now this is the proportion of lenses, and the lens which is given in this numerical, that is convex lens, and you know very well that convex lens always make real image. So now we have to prepare the data. So given data for this numerical is height of object is equals to 4 cm, height of object distance from the lens is 12 cm, and focal length f is 8 cm. We have to determine image distance q and height of image.
So formula for this is 1 over f is equals to 1 over p plus 1 over q. We have to determine image distance q, so we will modify the formula, and the new shape will be 1 over q is equals to 1 over f minus 1 over p. Now we will put down the values in this formula. 1 over q is equals to 1 over 8 because focal length is 8 centimeter minus p is 12 centimeter, so 1 by 12 centimeter. So 1 by q is equals to, we will take LCM of 8 and 4, that would be 48 centimeter, and we will divide 48 with 8, so we will get 6, so 6 will be multiplied with 1 minus, we will divide 48 with 12, 4 48, so we will multiply 4 with numerator 1, so 4 1 4. So what would be the shape of the next equation? 1 by q is equals to 6 minus 4 over 48 centimeter. Now after taking the LCM, what we will left, 1 by q is equal to 2 over 48 centimeters. So we will cut 48 by 2, 2 1 2 and 2 2 4, 2 4 8. So 1 over q is equal 1 over 24 centimeter. We will cross multiply. So the image distance q will be equals to 24 centimeter. Now we have to determine height of image. So for this we will do this step. M mean magnification. M is equals to height of image over height of object, and we will take it equals to q by p. So we will cross multiply here. So what we will get, the shape of the equation, height of image is equals to q multiply height of object over p. यानी p तो मल्टीप्लाई, सॉरी, जो हमारे पास p है वो मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट ऑफ इमेज के साथ, आप देख रहे हैं ना इक्वेशन के अंदर. तो हाइट ऑफ इमेज चूँकि हमने फाइंड आउट करनी है, तो p को हम इस साइड पे ले जाके उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में रखेंगे और फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो शेप होगी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू q मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर p. सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, वैल्यूज़ पुट करेंगे. q कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर एंड p इज़ 12 सेंटीमीटर. So what we will do, we will cancel 24 by 12 to 12 to the 24, and 2 will be multiplied with 4. So height of image will be 8 centimeter. And the third one, we have to determine the nature of the image. So answer of question C is image is real, inverted and magnified. Now students, we have to see the statement of numerical 12.9. An object 10 centimeter high is placed at a distance of 20 centimeter from a concave lens of focal length 15 centimeter. Calculate the position and size of the image. Also state the nature of the image. So बेटा ये कॉन्केव लेंस है जिसमें आपको पता है कि इमेज जो है वो वर्चुअल होता है, ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस है वो क्यू जो है वो नेगेटिव होता है. तो अब गिवन डेटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f इज माइनस 15 सेंटीमीटर, image distance and image height we have to determine. So formula for this is 1 by f is equal 1 by p plus 1 by q. So we will modify the formula because we have to determine image distance q. So 1 by q is equal 1 over f minus 1 over p. 1 by q is equals to 1 over minus 15 centimeter minus 1 by 20 centimeter. Now after putting the values we will see that 1 by q is equal, हम यहाँ पे उसका एलसीएम ले लेंगे 15 और 20 का, तो हमारे पास आ जाएगा जी 60 सेंटीमीटर. सो नाउ वी विल डिवाइड एलसीएम 60 सेंटीमीटर विद 15, मतलब विद माइनस 15 हम उसको डिवाइड करेंगे. तो 15 4 द 60 और जो माइनस 4 है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, तो माइनस 4, और इसी तरह दूसरी तरफ जाएगा. 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 23 द 60 तो 3 1 3, सो माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा. और माइनस 4 एंड माइनस 3 विल बी माइनस 7. So we will cross multiply, 60 multiply 1 and q will be multiplied with minus 7. So the value of q we have to find out. So minus 7 will move toward that side. So we will divide 60 with 7. So we will get q is equals to minus 8.57 सेंटीमीटर. तो नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि इमेज जो है वो, इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है. अच्छा जी, अब जो ऑप्शन बी, हमने ऑप्शन बी कह रही हूँ कि इसके अंदर आपने जो बी पार्ट था वो फाइंड आउट करना है. मैग्नीफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करनी है. उसके लिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू क्यू बाई पी. यहाँ हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे. हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर पी. अब बिल्कुल कितने सारे पीछे न्यूमेरिकल्स इसी तरह से आए हैं, हमने इसमें वैल्यूज पुट किए. हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल 8.57 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर ओवर 20. वो मल्टीप्लाई करके हम नीचे डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज जो आएगी वो आएगी 4.28 सेंटीमीटर. ये इसका आंसर होगा. अच्छा, जो सी पार्ट था इसका कि उसकी नेचर क्या है, तो इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड.
Now we have the statement of numerical number 12.10. A convex lens of focal length 6 cm is to be used to form a virtual image 3 times the size of the object. Where must the lens be placed? यानी वो कहता है कि लेंस तो कॉन्वेक्स है लेकिन इसमें इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा है और वो ऑब्जेक्ट साइज से 3 टाइम्स ज़्यादा उसका साइज़ है. तो कहते हैं इस केस में हम लेंस को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे रखें कि जो इमेज है वो वर्चुअल भी हो और 3 टाइम्स बड़ा भी हो उससे. तो गिवन डेटा है जी एफ इज इक्वल 6 सेंटीमीटर. मैग्नीफिकेशन उसने ऑलरेडी बताई है 3 टाइम्स एम इज इक्वल टू 3 और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एम इज इक्वल टू क्यू बाई पी. सो वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ एम इज 3 इज इक्वल क्यू बाई पी. सो वी विल गेन वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल -3b. माइनस वो इंडिकेट कर रहा है साइन ऑफ कन्वेंशन को क्योंकि इमेज वर्चुअल है. फॉर्मूला है हमारे पास 1 बाई एफ इज इक्वल 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू. वैल्यूज पुट करेंगे 1/6 सेंटीमीटर इज इक्वल 1/p माइनस 1/3p. ठीक है. अब p और 3p का एलसीएम लेंगे तो 3p हमारे पास आएगा. तो 1/6 सेंटीमीटर इज इक्वल वही सारा प्रोसेस जो हम एलसीएम में करते होते हैं हमारे पास आएगा 3 माइनस 1/3p इक्वल 2/3p. यहाँ हम अब 1/6 सेंटीमीटर और 2 इक्वल 2/3p में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p इज इक्वल 12 सेंटीमीटर हो जाएगा. चूँकि p फाइंड आउट करना है इसलिए 12 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो p आएगा इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. Okay students, now we have the statement of numerical 12.11. A ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index of the liquid is 1.25. ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस. ठीक है जी. ये आपने इसकी वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल की भी फाइंड आउट करनी है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का 1.25 हो. इसके लिए हमारे पास गिवन रहता है θ1 जो है वो दिया हुआ है उसने 35 डिग्री और θ2 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है. सो n इज इक्वल्स टू 1.25 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है उसने और फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n इज इक्वल साइन चूँकि I और R होता है ना इंसिडेंस एंगल ओवर रिफ्रैक्टिव एंगल तो साइन θ1 ओवर साइन θ2 हम लेंगे तो वैल्यूज पुट आउट करेंगे 1.25 इक्वल्स टू साइन 35 डिग्री. θ1 की वैल्यू 35 डिग्री. सो साइन 2 जो है वो θ2 हमने फाइंड आउट करना है. सो वी विल मल्टीप्लाई साइन θ2 मल्टीप्लाई 1.25 इक्वल्स टू साइन 35 डिग्री. सो साइन θ2 जो आएगा वो हमारे पास आएगा इक्वल्स टू साइन 35 डिग्री ओवर 1.25. We have to see that sin θ2 is equal to 0.57 over 1.25. Sin 35's value is 0.57. So when we will divide 0.57 with 1.25, we will get sin θ2 is equal to 0.45. In next step, we will, we have to find out the value of θ2. So we will take sin toward the other side, right? So ये जैसे कि आपको पता है डिवाइड होता है डिनोमिनेटर के फॉर्म में लेकिन हम इसको इन्वर्स में लिख लेंगे साइन इन्वर्स. सो ये आ जाएगा जी θ2 इज इक्वल टू जब 0.45 का साइन इन्वर्स हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 27.32 डिग्री. अब फॉर्मूला है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n इज इक्वल टू साइन r ओवर साइन i. तो साइन i इज इक्वल टू आई इंसिडेंस एंगल है तो साइन r ओवर n. अच्छा ये वैसे तो साइन आई ओवर आर होता है ना लेकिन यहाँ पे हम इसका जो है वो रेसिप्रोकल यानी उलट वैल्यू ऑपोजिट में इसको यूज़ कर रहे हैं साइन आर ओवर साइन आई. ठीक है. सो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर ओवर एन. वैल्यू पुट करेंगे साइन आई इज इक्वल टू साइन आर ओवर 1.25 फॉर क्रिटिकल एंगल. आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है इसीलिए तो उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं. वैसे तो वो इंसिडेंस एंगल होता है लेकिन उसको क्रिटिकल इसीलिए कहते हैं दैट इंसिडेंस एंगल हुज कोरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. सो ठीक है ये भी हमें पता चल गया. और इंसिडेंस एंगल यहाँ पे हमारे पास है जी क्रिटिकल एंगल के इक्वल. सो साइन आई की जगह हम साइन सी लिख लेंगे इज इक्वल टू साइन 90 ओवर 1.25. Now we have to see that the value of sin 90 is 1. So sin c is equals to 1 over 1.25 when we will अच्छा अब एक बार चीज़ और है हमने वैल्यूज़ पुट कर लिए ना. अब हमने 1 को जब 1.25 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया जी sin c इज इक्वल्स टू 0.80. ठीक है. तो अब c चूँकि क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड आउट करना था ना तो c इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स और वही जैसे पीछे हमने किया था 0.80. अब जब 0.80 का साइन इनवर्स हम लेंगे तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू c की जो आएगी हमारे पास आएगी वो 53.13 डिग्री. Now the statement of numerical 12.12 is the power of a convex lens is 5 diopter. At what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed.
So given data for this, par is equals to p is equals to 5 diopter, f is equals to हमें पता है कि 1/p यानी फोकल लेंथ जो होती है उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि f इज इक्वल टू 1/p इज इक्वल 1/5 पर मीटर, क्योंकि डायोप्टर आपको पता है ना पर मीटर होती है, ठीक है। सो पीछे हमने डेफिनेशन में इसको डिस्कस किया था, इफ़ दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 1 मीटर, सो द पावर ऑफ द लेंस विल बी 1 डायोप्टर, ठीक है। तो डायोप्टर जो होगी वो पर मीटर के इक्वल होगी, सो f इज इक्वल्स टू 1/5, जब हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी 0.2 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए यहाँ पे ये पर मीटर था, ज़ाहिर है जब हम 1 को डिवाइड कर लेंगे तो फिर जो हमारी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर जो मीटर है वो पर मीटर जो है वो मीटर बन जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ आ जाएगी मीटर में 0.2 मीटर। अब हमने क्या किया कि चूँकि मीटर में ये डेसिमल के अंदर है, हमने इसको साथ में, चूँकि मीटर में तो नहीं ना ले रहे हम, यहाँ पे लेंस है, ठीक है, तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब हमने 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो f इज इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, देन नेक्स्ट स्टेप f इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। और p जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, और m जो मैग्नीफिकेशन दी हुई है उसने 2 टाइम्स लार्जर या ग्रेटर दिया हुआ है। फार्मूला हमारे पास है m इज इक्वल्स टू q/p। अच्छा जी, फार्मूला था हमारे पास m इज इक्वल टू q/p, और m की वैल्यू 2 दी हुई है, इक्वल टू q/p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इक्वल आ जाएगा 2p के। अब फिर फार्मूला 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। फोकल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर आई थी, 1/20 सेंटीमीटर इज इक्वल 1/p प्लस 1/, चूँकि q की वैल्यू आ गई 2p, तो q की जगह पे हम फार्मूले में 2p की वैल्यू 2p इसकी जगह पे लिखेंगे। सो 1/20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब देखिए 1/p प्लस 1/2p का जब हम एलसीएम लेंगे 2p आएगा, 2p को p से डिवाइड करेंगे हमें 2 हासिल होगा, तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 प्लस 2p को 2p से डिवाइड किया 1 1 मल्टीप्लाई 1 1। सो 1/20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 3/2p 2p जो है ना वो साथ में हमारे पास आएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2p मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब p चूँकि फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करना है, 2 को उस साइड पे ले जाएंगे तो p इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर/2, तो p यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बेटा ये जो तमाम न्यूमेरिकल्स हैं, अब आपने इनको, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स किए थे और इस लेक्चर में हमने ये 6 न्यूमेरिकल्स किए हैं, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से आप दोबारा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है ईजी, एक ही फार्मूला, एक ही तरीके, आपने नोटिस किया होगा एक ही पैटर्न पे सारे न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ उनकी स्टेटमेंट्स चेंज है, या अगर कहीं डिफरेंस है तो वो मिरर का या लेंस का डिफरेंस है जहाँ पे साइन कन्वेंशंस आती हैं। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज, focus on your studies and work hard so that there will be no problem for you in your exams. Okay students, stay at home, stay safe, may Allah Almighty bless you always with good health and each and everything. Thanks and Allah Hafiz.